अगला कार्यक्रम पुष्प अर्पण प्रभुपाद जी के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने की भावना से माननीय राष्ट्रपति जी, उनकी धर्मपत्नी जी पुष्प अर्पण कर रहे हैं और उनके साथ उड़ीसा के गवर्नर एवं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी प्रभुपाद जी का एवं बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के कार्यक्रम के बाद में प्रार्थना करना चाहूंगा। ये जो गौड़ीय मिशन 3 वर्षीय प्रभुपाद जी का जन्मोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मना रहा है, इस गौड़ीय मिशन के आचार्य श्री भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जी पधारे हैं और गणमान्य व्यक्ति जो पधारे हैं, तमाम सन्यासी लोग पधारे हैं, उनके सम्मान में वेलकम स्पीच प्रदान करें श्री भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतो पदकमलम श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। It is our great pleasure today for with the peoples of Srila Prabhupada worldwide to accumulate here to celebrate the cherished inauguration of the 3-year-long ceremony
for 158th birth anniversary of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. I, on behalf of Gaudiya Mission and other Gaudiya Sanghas, greet with my heartfelt gratitude to His Excellency Sri Ramnath Kovind Ji, Honorable President of India, Honorable Governor of Odisha, and Honorable Central Minister for being with us at this historical moment. Now let me glorify in nutshell that divine personality whose super magnetic power brought us together Srila Rupa Goswami Pad glorifies Chaitanya Mahaprabhu by the word Mahabadanya. It signifies Mahan Data. Mahaprabhu, with his open hands, widely distributed a very rare religion, the religion of love, that is Krishna Prema. Srila Prabhupada said, the Mahabadanyata of Mahaprabhu is his highlighting Bhagavad Dharma to one and all. In the words of Srila Sarup Damodar Prabhu, it is his Amanda Udaya Daya Parodaya, Jivodaya. Sometimes Sri Gaur Karuna Shakti Srila Prabhupada said, I will speak out only the unadulterated or pure Krishna consciousness following the footsteps of Sriman Mahaprabhu, be it not entertainable to all ears of the world, but I know it is the real form of Paraupakar. To make success his mission of Paraupakar, he invited the children of high families of Kulin, Brahmins, Pandits, and Dhani to join him, as they will be spectacular to all. He got response from all around the world. Thousands of men from youth section joined his hands as his warriors. He sanctified their life and motivated them to help others to do by the words of Mahaprabhu, Jivan Sarthak Karo Kori Paro Upakar. He trained them, transformed each of them into gigantic magnets to carry the message of Krishna consciousness by demolishing the sorrows and miseries of gross material hankerings at every doorstep of the world. May I take a leap to say that I myself came in touch of some of such magnets at the age of only 14. Their magnetic power sanctified my life, ending material miseries, and brought up holding my hand to where I am standing today. Gaudiya Mission is desirous to offer an appropriate tribute to this greatest divine soul who established Gaudiya Maths and later gave an organizational form, namely Gaudiya Mission, in early 1930s. He was the only one to prove that Bhagavad Dharma as not a sectarian religion, but the illumination of peace, love, and harmony for all living beings. He was the first to take the Indian thinkings to the European countries, establishing 64 Maths centers worldwide, and is followed by millions. His propounded message influenced, to name some eminent Indian personalities like Netaji Subhash Chandra Bose, Madan Mohan Malabya, Chakravarti Raja Gopalachari, etc. He was the first to bring Indian thoughts
via printing media in several languages, both Indian and foreign. This program at Sridhampuri today is going to be inaugurated by the hands of His Excellency with gracious presence of honorable delegates and Reverend Acharya of Prabhupada School from around the world. A unique biography of Prabhupada by the name Srila Prabhupada, a messenger from Vaikuntha, will be released today. I pray Lord Jagannath, Lord Chaitanya, Srila Prabhupada and my revered predecessors Acharya to grace blessings upon our little effort to make it a grand success. Hare Krishna. पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी के वेलकम स्पीच के बाद अगला कार्यक्रम फेलिसिटेशन ऑफ डिग्नेटरीज, जिसमें हमारे विभिन्न गौड़िया मठ के जो पूज्य आचार्य हैं वे अपने हाथों से आज की सभा में जो अतिथिगण पधारे हैं उन्हें मेमोंटो प्रदान करेंगे। श्रील प्रभुपाद जन्मोत्सव का स्मृति चिन्ह। सबसे पहले प्रार्थना करूंगा सन्यासी महाराज हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को अपने हाथों से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री सन्यासी महाराज जी। तत्पश्चात प्रार्थना करना चाहूँगा श्री विजय खंडेलवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा, हमारे देश की जो प्रथम महिला नागरिक है श्रीमती सविता कोविंद, उन्हें अपने हाथों से मेमोंटो प्रदान करेंगे। श्री विजय खंडेलवाल जी। हमारे उड़ीसा के गवर्नर श्री प्रोफेसर गणेश लाल जी पधारे हैं, उनके लिए प्रार्थना करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के आचार्य पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज जी अपने हाथों से प्रभुपाद जन्मोत्सव स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री विष्णु महाराज जी। तत्पश्चात मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के आचार्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति धारा के, तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विभूत बोधायन महाराज जी, वे अपने हाथों से श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मेमोंटो प्रदान करेंगे। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के जो बड़े तेजयान प्रचारक हैं, पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा ऊंचे किए हुए हैं, तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी माइक पर आकर आज की सभा में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। सबसे पहले
सर्वप्रथमे सम्माननीय आमर भारतर राष्ट्रपति महामनीष प्रथम नागरिक श्रीमान रामनाथ कोविंद जी एवं तांकर सहधर्मिणी श्रीमती सविता देवी, सम्माननीय उत्कल देशर राज्यपाल श्रीमान गणेश लाल जी एवं आमर उत्कलर स्वनामधन्य नेतृवृंद वर्तमान श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, आमर उपस्थित पूज्य गौड़िया मिशनर आचार्य श्री सन्यासी महाराज एवं अन्यान्य समस्त पूजनीय आचार्य वृंद उपस्थित एवं समस्त त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी गृहस्थ भक्तवृंद एवं श्री नीलाचल धामवासी समस्त स्थावर जंगम समस्त भक्तवृंद समस्त को मोर यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करुच्ची एवं नमस्कार ज्ञापन करुच्ची। जो उपलक्ष्य आमे माने इठारे उपस्थित होइछे ए विषय समस्ते आमे माने जानिचे। आमर उत्कल पुरी व्यासदेवंकर वचन ह्युत्कले पुरुषोत्तमात्, उत्कल देशरू ए पुरुषोत्तम क्षेत्ररू सारा विश्व ए कली जुगरे तार शांति बाणी मैत्री बाणी सुख एवं प्रेम मैत्री बाणी को सारा विश्व प्रचार करने 5000 वर्ष पूर्वे व्यासदेव जहाँ पुराण रे वर्णना करथिले तार साकार एवं तार साक्षात उपलब्धि करी आमे माने आजी तार वचनर सार्थक करुचे। तार जे मूल होचंदी नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरस्थशील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जार उपलक्ष्य आमे माने समस्ते एकत्रित होई तांकर आराधना करी विश्व रे तांकर कथा प्रचार करिया पई जाउचे। वर्तमान उपस्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, से गौड़ीय मठरे पूर्वे तांकर जन्म होइथिला एवं से जन्म हेबार परे से रथयात्रा परे तांकर माता भगवती देवी एवं पिता केदारनाथ दत्त परे जे भक्ति विनोद ठाकुर नाम रे भूषण हेई तांकर प्रचिति लाभ करथिला। से शील प्रभुपाद वाणी जगन्नाथ रथ उपरे तांको जेतेबेले नमस्कार करिसंदी रथंकर जगन्नाथंकर माला तांको उपरे साक्षात भावे आसी तांको मंडन करदेला एवं सेतेबेले ही से बालक जगन्नाथंकर कृपा को नहीं सारा पृथ्वी रे जगन्नाथंकर रथयात्रा किपरि हबो, जगन्नाथंकर नाम किपरि हबो, जगन्नाथंकर प्रसाद किपरि पाइबे, जगन्नाथंकर संस्कृति जगन्नाथंकर धर्म एवं तार कीर्ति को कीर्तिमान करिया पई शतकोटी नाम यज्ञ करी सारा पृथ्वी रे आज आम देखुचे पंच महादेश रे जेते सहर अच्छी जेते नगर पुरपल्ली होची जगन्नाथंकर नाम प्रचार होची, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होती एवं रथयात्रा जगन्नाथंकर सर्वत्र प्रचार ही आई कली जुगरे भीषण कली भितरे मध्य हरिनाम संकीर्तन कीर्तित मान प्रचार करि आछंदी। सेति पई आमे माने समस्ते गरीब गर्वित जोठी आम मानकर ही उत्कल देश रे ए प्रकार सुप्त भाव रे आमे तार जानी परने किंतु जानिबा जगन्नाथंकर कृपा अवश्य हेले ही आम माने जानी परिबा। आज सारा पृथ्वी रे बुझुचंदी जगन्नाथंकर महात्मा कण एवं जगन्नाथंकर चरित्र श्रीमद भागवतर महात्मा कण। प्रकृत रे जदि जगतर कल्याण करने को है ताहले तार आत्मार कल्याण केमि हम ताकू देखा दरकार, तार चरित्र कि प्रकार शोधन होगा दरकार, तार मानसिक तार शारीरिक तार वाचनिक तार कैरेक्टरशिप जदि ठीक हो जाए ताहले सारा पृथ्वी परिवर्तन नहीं जीव, समस्ते शांति रही पारे, समस्ते सुखरे रही पारे, समस्ते आनंद रही पारे। जे विश्वकर्ता जगन्नाथ जगत को तैयारी करचंदी तांकर मध्य समस्ते कृपा भाजन है मनुष्य जीवन को सार्थक करी भगवान धाम को जावाई सौभाग्य लाभ करें। एथिपाई तांकर महात्मा साक्षात आम देखुचे से निजे एठी जन्म होते किंतु मायापुर रे 7 कोटी नाम यज्ञ गोटे बेला जगन्नाथंकर प्रसाद पाई 12 वर्ष पर्यंत तपस्या करी सिद्धि लाभ कले एवं महाप्रभुंकर अवतार परे तांको तांकर पार्षद मान को पठेले जन जन को सी से विज्ञान संबंध विज्ञान को तार स्वर प्रतिमूर्ति स्वरूप तांकर शिष्य मान को क्या अमेरिका पठेले क्या इंग्लैंड पठेले क्या रोम पठेले क्या ऑस्ट्रेलिया पठेले एवं तार पठे सारा पृथ्वी रे जो माने लॉर्डशिप होगी
आमर ये शासन करी आम मानकर संस्कृति धर्म धन श्री संपत्ति को लुटि नहीं लॉर्डशिप को सी शेष करी तुलसी माली पिंधे तिलक करी शाढ़ी पिंधे आचु सुंदर लगे हरिनाम संकीर्तन करी जगन्नाथ आगे जय जगन्नाथ करी समस्ते कीर्तन करी आम मान प्रति आसिक देले से महात्मा ही से होचंदी मूल तार आदि से ही प्रथम जे कि आपको तैयारी करी समस्त को से प्रकाश करी शक्ति प्रेरण करथिले जहाँ शक्ति रे आज मध्य आमे माने अकिंचितकार हेले मध्य कौनसी योग्यता नथिले मध्य तांकर कृपारो सारा पृथ्वी रे सर्वत्र जगन्नाथंकर कथा प्रचार प्रसार करने एवं तांकर महात्मा को प्रकाश करने तांकर रथ सर्वत्र गढ़ापी जगन्नाथ को आम मान को प्रकार सौभाग्यवान प्रदान करछंदी मो विशेष आउ कहबेनी एतिकी मात्र कही मोर वाणी को मु विश्राम दूची समस्त सम्माननीय अतिथिवृंद एवं आमर सभापति प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल महोदय एवं मंत्री महोदय एवं अन्यान्य समस्त आचार्यवृंद एवं समस्त सुहृद वृंद भक्त माने समस्त को मोर यथायोग्य अभिवादन करी जगन्नाथंकर कृपा भिक्षा करी श्रील प्रभुपादंकर कृपा भिक्षा करी मोर वाणी के विश्वास करछि विश्राम करछि। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आज की इस बहुत सुंदर सभा के जो विशेष अतिथि हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके पिताजी भी श्री देवेंद्र प्रधान जी बहुत समाज की सेवा करते रहे। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने हृदय के उद्गार हमारी गौड़ीय जनता को प्रदान करें। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। जय जगन्नाथ। आजिर ये वर्णाढ़ 150तम जन्म वार्षिक उत्सव रे ये 3 वर्ष व्यापी आयोजित होबाकु थिबा ये जन्म वार्षिक उद्घाटक आम समस्तंकर अत्यंत श्रद्धार केंद्र भारतवर्षर परम सम्माननीय राष्ट्रपति माननीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, परम आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, सहधर्मिणी माननीय राष्ट्रपतिंकर, ओडिशार अत्यंत लोकप्रिय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी, मंचर उपस्थित थिबा श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठर आचार्य श्रीमद भक्ति विबुध बोधयन महाराज महाशय, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज महाशय, गौड़ीय मिशन आचार्य भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज एवं उपस्थित श्री क्षेत्र सारस्वत गौड़ीय वैष्णव महासंघर परम पूज्य महंतगण साधु समाज, ओडिशार वरिष्ठ नागरिक माने ये पवित्र पुरी धाम रे उपस्थित थिबा समस्त अधिकारी बंधु माने, गणमाध्यम बंधु माने तथा टेक्नोलोजी माध्यम रे जोड़ी होइथिबा सारा विश्व तमाम वैष्णव प्रेमी चैतन्य महाप्रभुंकर अनुजाई गौड़िया मठंकर अनुजाई भक्त वृंद आपण समस्त को मुझे पवित्र क्षेत्र रे महाप्रभुंकर पाद तले प्रणाम जणे की स्वागत करुछि। ओडिशा तरफ स्वागत करुछि, ओडिया समाज तरफ स्वागत करुछि। स्वागत करुछि महामहिम राष्ट्रपति को। कोरोना विभीषिका बेले भी गत वर्ष जितेबले संत माने आसीथिले दिल्ली को आग्रह थिला जे आमर ये भव्य सम्मिलनी 2022 रु 25 पर्यंत चलिबो। से समय भारतर राष्ट्रपति महाशयंकर उपस्थिति, माननीय प्रधानमंत्री शुभेच्छा तथा राष्ट्रीय नेतृत्वर सहयोग आवश्यकता अच्छी।
बंधुगण आम पुरी उपरे गोटे महाप्रभुंकर नारे कथा जोड़ी होइकी अछि जे महाप्रभुंकर डाकरा न पाइले पुरी केही केबे आसंती नाही। मु महाप्रभुंक पाखरे सर्वप्रथमे कृतज्ञता जनैमी जे गौड़ीय मठ श्रील महाप्रभुंकर 150तम जन्म जयंती अवसर रे आज महामहिम राष्ट्रपति आम गहन रे उपस्थित रहीकि ये वैष्णव परंपरा को शामिल है कि ये सनातनी व्यवस्था को सहयोग करले तांकर मत स्पष्ट करले ता सह जेतबेले राष्ट्रपति भलिया महानुभव आम भितर आसंती आमे नुआ काम करिबा पई पुलकित हुंती नुआ काम करिबा पई प्रेरणा पात मो राष्ट्रपति को कृतज्ञता जनाऊँगी राष्ट्रपति आम भितर आसीथिबारु। मु दुईटी कथा केवल निवेदन करी आज भाया पवित्र सारस्वत उत्सव रे 500-600 वर्ष पूर्वे ये वैष्णव पीठ सनातनी पीठ जेतेबेले मोगल साम्राज्यर समय सरुथला इंग्रेज शासनर पदध्वनि भारत आड़को माड़ी आसुथला से समय सामाजिक व्यवस्था रे जो भलिया असुविधा सबु थिला असामंजस्य थिला तार भितरु उत्पत्ति है ये प्रेम श्रद्धा स्नेहर विचार वार्ता चैतन्य महाप्रभुंकर प्रेममय वार्ता नदियारू आरंभ करिकी महाप्रभु जगन्नाथ का शरण रे रहीकी गोटे बड़ व्यापक विचार एक वैश्विक विचार मु आज बहुत खुशी बहुत कृतज्ञता देवी गौड़िया वैष्णव मठर आयोजक बंधु मानक आज ये सम्मेलन नाम रखिंट ग्लोबल वैष्णव कॉन्फ्रेंस वैश्विक वैष्णव सम्मेलन भाव में ना रखिंट जेतेबेले विश्व आज दो छकी अच्छी एकविंश शताब्दी रे विंश शताब्दी आरंभ हो मिशन एकविंश शताब्दी जो पृथ्वी रे गोटे नुआ ऑर्डर आरंभ कर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आसी अर्थनीति समाज नीति वैश्विक दायित्व परिवेश प्रति दायित्व मन भीतर संस्कार एगुड़िक आहरी प्रासंगिक से समय ये गौड़ीय मिशन रो विचार भी प्रासंगिक ये आगामी 3 वर्ष धरिकी सुखद संजोग भारत वर्ष राष्ट्रपति अनुमति क्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन क्रमे मोर भलिया अकिंचन दायित्व अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करवा जेतेबेले मु चैतन्य महाप्रभुंकर वार्ता पढ़ुची साहित्य पढ़ुची वैषयिक आवश्यकता को ध्यान रखी कही वक्तव्य को आत्मसात करुची बंधुगण राष्ट्रीय शिक्षा नीतिर गोटे गोटे पृष्ठ तार प्रतिफलन अच्छी इंडियन नॉलेज सिस्टम शिक्षा को आधुनिक करवा प्रासंगिक करवा स्वाभिमानी नागरिक तैयारी करवा आत्मनिर्भर नागरिक तैयारी करवा समाज जागृत हेले देश जागृत हब देश सशक्त हेले मानव कल्याण हब एटा भारतीय साधु संत चैतन्य महाप्रभु कटु आरंभ करिकी श्रील महाप्रभु प्रभुपाद पर्यंत यही वार्ता अच्छी आम समस्ते आसतु मिशिकी महामहिम राष्ट्रपति गरिमामय उपस्थिति रे संकल्प करिबा महाप्रभु जगन्नाथकर चैतन्य महाप्रभुंकर सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाप्रभुंकर वार्ता को एकविंश शताब्दी रे मानवता पाई आहुरी उपयोगी बनैमा ये 3 वर्ष आमे समर्पित करिबा एक नुआ अध्याय सृष्टि करिबा पाई पुनर्बार ओडिशा तरफरु राष्ट्रपति महोदय को तांको परिवार को महाप्रभुंकर डाकरा पाई के आसीथिबारु कृतज्ञता जनाऊँगी आम जाति को आम समाज को सम्मानित करिथिबारु धन्यवाद दौची। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री
धर्मेंद्र प्रधान जी की विचारधारा, बड़ी सुंदर विचारधारा आप लोगों ने सुनी। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे उड़ीसा के गवर्नर और आज की सभा के चीफ गेस्ट प्रोफेसर गणेशी लाल जी, वे चीफ गेस्ट जी अपने हृदय के उद्गार। चीफ गेस्ट तो हमारे आदमी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, एक 150वीं पावन जयंती पर जो प्रभु जगन्नाथ जी का, महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने और हमको आशीर्वाद देने के लिए वंदनीय महादेवी जी के साथ जो पधारे हैं, ऐसे मेरे महान भारत के महान महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, अपने ही इस प्रदेश के, उत्कल प्रदेश के सर्वप्रिय सर्वमित्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के सखा धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय श्रीचरण, सभागृह में उपस्थित सभी वंदनीय बंधु एवं भगिनी, सभी समस्तन को शुभेच्छा, अभिनंदन, अभिवादन, प्रणिपात। विश्व के अंदर देयर आर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस studying the subtle laws of material nature, but there is no university which is studying the constitutional position of the soul. And science till now has not been able to trace out the personality, personal self. How amazing it is that the God particle is trying to find out what God particle is. 10,000 साइंटिस्ट लगे, कितने ही वर्ष लगाए, 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल खोदा, जमीन के 300 फीट नीचे गए, 50,000 करोड़ रुपया भी खर्च किया, लेकिन गॉड पार्टिकल का तलाश नहीं कर पाए। There is chaos in the world, he said. It is socially, nationally, collectively, individually. But there is one university, you see, that is Gaudiya Mission University, ISKCON University, which speaks to the communists, speaks to the Christians, speaks to the Islam, even to the greatest philosopher of the world, Greece, Socrates also. सुकरात मानते थे एटर्निटी ऑफ द सोल को, लेकिन सोक्रेटिस भी वाज कंफ्यूज्ड अबाउट चैतन्य महाप्रभुज इनकॉन्सीबिएबल वननेस एंड डिफरेंस। सुकरात भी अचिंत्य भेद अभेद के बारे में कंफ्यूज थे। इसको भी दुनिया में बताने वाला कौन? इसको भी दुनिया में बताने वाला गौड़ीय मिशन श्रील प्रभुपाद गोस्वामी ही तो थे। दुनिया के अंदर हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, यहां भी पढ़ते हैं, फ्रॉम डार्कनेस एंड टू लाइट, तमसोर्मा ज्योतिर्गमा। पर ज्योति क्या है, इसको किसने बताया? ज्योतिर्शाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते, दीवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, यतादित्यम गतम तेजो जगतम भास्यते अखिलम, प्रभास्मि शशि सूर्यो। ये ज्योति कौन है? थाउजेंड्स ऑफ सन्स राइज साइमल्टेनियसली इन द स्काई that might resemble the effulgence of the supreme personality of Godhead Lord Krishna। इसको बताने वाला अगर दुनिया में कोई है तो वह गौड़ीय मिशन है, वह श्रील प्रभुपाद है। ज्योति वो है। हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, असतो मां सतः गम, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मृत्युर्मा अमृत गमय। पर ये अमृत क्या है, ये मृत्यु क्या है, ये सत्य क्या है? फिर बताया गौड़ीय मिशन ने, अमृतश्चैव मृत्युश्चैव
सत असत चहम अर्जुन, मैं ही हूं सब कुछ। ब्रह्म संहिता में भी कहा, नादि आदि गोविंद सर्व कर्ण कारणम, प्राइम cause of all the causes, cause that has no cause. I am the origin of all, but my origin is not there, no origin of myself. I am the ultimate sanctuary of this universe, and I am the generating seed of all that yet to be. मृत्यु सर्वहरस्य मुद्भवस्य भविष्यताम, ये भगवान कृष्ण का गौड़ीय मठ में बताया, दुनिया के अंदर बताया, कम्युनिस्टों को बताया, कम्युनिस्टों के फिलोसफर्स को बताया। सोवियत के अंदर प्रोफेसर कोटावस्की, जो एकेडमिक ऑफ साइंसेस के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनको बताया कि आप क्या करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, एंड योर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज नथिंग एल्स बट सिंपली एन एक्सटेंडेड माइंड। मेरे का थोड़ा विराट रूप है आपका स्टेट, सेंटर आपका बदल लीजिए। वाई ख्रश्चेव हैज बीन ड्रिवन आउट, वाई लेनिन हैज बीन अपरूटेड, why about the Stalins and Maos, those are the criminal persons? Therefore, you submit to the design, submit to the personality of God or Lord Krishna, in whom all the dialectics ends, जिसमें सभी द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, उसको करिए। मैं जानता हूं कि हमको आशीर्वाद प्रधान राष्ट्रपति जी का लेना है, लेकिन आज क्रिश्चियनिटी भी मोर पंख को पुनर्जन्म, अमरता, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रतीक मानती है। आज इस्लाम भी दुनिया में जन्नत के बाहर जो शाही बगीचा है उसका प्रतीक मानता है। इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो वह ताकत है गौड़ीय मिशन की। ये वर्ल्ड जितना भी सारा है, विश्व जितना भी सारा सुंदर सा टाइनी स्पेक ऑफ कॉस्मस, the beauty, light and peace are hovering in the sky, and that can be only brought down to the earth with the efforts and endeavors of गौड़ीय मिशन ISKCON। उसके माध्यम से यह विश्व सुंदर बन सकता है, रहने लायक बन सकता है, माशूकों का बन सकता है। इसी प्रार्थना के साथ वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। हमारे आज की सभा के गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे उड़ीसा के गवर्नर बड़े सुंदर विचार हमें दे रहे थे। जी तो करता था सुनते रहें, लेकिन समय की पाबंदी, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का आगे कार्यक्रम है। अगला कार्यक्रम है अनवेलिंग ऑफ सोवेनियर्स, और एक प्रभुपाद जी के बारे में लीनियर बायोग्राफी ऑफ श्रील प्रभुपाद, ए मैसेज फ्रॉम वैकुंठ, ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सन्यासी महाराज जी, ये जो सोवेनियर है ये उड़िया भाषा में है, इंग्लिश में है, तो हमारे मधुसूदन महाराज मंच पर इसका संचालन करें। इस पुस्तक का बायोग्राफी श्रील प्रभुपाद का अनावरण कराएं। ये बुक जिन्होंने इसके लिए इतनी मेहनत करी, श्री धृतव्रत भट्टाचार्य टाटो जी, वे उनसे प्रार्थना कर माइक पर आएँ, उनकी 2 मिनट की जो वीडियो क्लिप है उसका भी प्रदर्शन करें। श्री धृतव्रत भट्टाचार्य जी।
इस ग्रंथ के विमोचन पर एक जोरदार तालियां। तत्पश्चात श्री धृतवत भट्टाचार्य टाटो जी। Your Excellency, Honorable President of India, Your Excellency, the Honorable Governor of Odisha, Honorable Minister of Union Government of India. It is a very difficult task to put in a single book an illustrious life of an extraordinary spiritual leader of Srila Prabhupada's stature. On top of that, he inherited a rich Vaishnava tradition that comes down through millennia. Born in the period of Bengal's intellectual renaissance, he was a student of the institutions established by Vidyasagar, and he frequented people like Rabindranath Tagore. Instead of reforming Sanatana Dharma, he revived it, which created an awe for the British Governor-Generals to also the Indian patriots. He crisscrossed India and revived tangible and intangible cultural heritage of Sanatana Dharma. He revived the archaeological sites of Vaishnava significance. He was a great writer, editor, and publisher. He started a printing press and wrote books in English, Sanskrit, and Bengali. He published many sacred texts and new theological literature. In the 20s, when publishing even a single magazine in the world was very difficult, he published world's first Vaishnava daily newspaper and 5 weekly and fortnightly magazines in English, Bengali, and Odia and Assamese. He was an inspiration for all those who led India's freedom movement, from Madan Mohan Malviya to Dadabhai Naoroji to Shyama Prasad Mukherjee. In Odisha, in Cuttack, he made Janakinath Bose and Subhash Chandra Bose, and he introduced them to Vaishnavism. He sent out world's first Vaishnava and Sanatana Dharma delegation to England and Europe. Her Excellency, the Queen of England, met his delegation in 1933. His first Sanatana Dharma temple, the first Sanatana Dharma temple in Europe, was established by his missionaries in London. The royalties of Indian princely states became his supporter, but above all, he led more than 500 sessions of Harinam among the common people. His Gauriya mission carries out the humanitarian and spiritual activities led by him to the world even today. He introduced a mission and monastery that still inspires youth and the devotees alike. But it is not his erudition, intellectual, or his organizational capacity. In his youth, for 9 years and 4 months, he dedicated to chanting 1 billion name of Hare Krishna Mahamantra. That gave him the supernatural power from the realm of Lord Krishna. My gratitude on behalf of Gauriya Mission and assembled Gauriya Sampradaya for your kind attention. Thank you. श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ भगवान की। देखो वो समय आ गया जिसके लिए आप इतनी भारी संख्या में यहां पर पधारे हैं। राष्ट्रपति महोदय अपने हृदय के उद्गार हम सभी गौड़ीय भक्तों को देंगे, इसलिए एक बार पूरे जोर से श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ भगवान की। हमारे देश के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मंच की ओर, माइक की ओर जा रहे हैं। प्रस्ताव। इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,
श्रीमद् भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज आचार्य गौड़िया मिशन एवं मंचासीन अन्य सभी आचार्यगण, इस सभागार में उपस्थित सभी संत समाजगण, देवी और सज्जनों, आप सभी को जय जगन्नाथ, श्री श्री गुरु गौरांगे जयता। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कल सायंकाल पुरी पहुँच गया था। सबसे पहले जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में जा कर के उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके प्रभु, ये जो अनदेखी, जो दिखाई नहीं पड़ती है महामारी, पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, इससे जितनी जल्दी हो सके पूरे विश्व को, पूरी मानवता को मुक्ति मिल सके, ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगन्नाथपुरी आने और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का बराबर अवसर मिलता रहा है। यहाँ आकर गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीमद सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती से जुड़े इस समारोह में सम्मिलित होना भी मेरे लिए हर्ष का विषय है। मुझे बताया गया है कि इन समारोहों की श्रृंखला 3 वर्ष तक मनाई जाएगी, जो सन 2025 में संपन्न होगी। ईश्वर की कृपा से मुझे अपने जीवन में देश के अनेक धर्म स्थानों और तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने का अवसर मिला है। इन सभी स्थानों में मैंने देखा कि विविध परंपराएं और धार्मिक प्रणालियां प्रचलित हैं, परंतु इन आस्थाओं के पीछे एक ही सोच निहित है, और वह है ईश्वर भक्ति के साथ साथ पूरी मानवता को एक परिवार समझते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करना। मानवता का धर्म पर आधारित विभाजन नहीं किया जा सकता, सत्य को बांटा नहीं जा सकता। एक ही सत्य का कई रूपों में वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार से व्याख्याएं करते हैं। देवियों और सज्जनों, वह परम शक्ति अपने सभी रूपों में पूजनीय है, विद्यमान है। भारत में भक्ति भाव से ईश्वर को पूजने की परंपरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। हमारी यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ अनेक महान विभूतियों ने लोगों को निस्वार्थ उपासना का मार्ग दिखाया। ऐसी महान विभूतियों में भी चैतन्य महाप्रभु को विशेष दर्जा प्राप्त है। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। इसीलिए महाप्रभु शब्द का प्रयोग ईश्वर के नाम के अतिरिक्त केवल श्री चैतन्य के लिए ही किया जाता है। उनकी विलक्षण भक्ति से प्रेरित होकर ही बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना। श्री चैतन्य ने अद्भुत और अखंड भक्ति भाव का आजीवन पालन किया। अपनी इस अखंड आस्था के विषय में उन्होंने अनेक प्रकांड विद्वानों से भक्ति और ज्ञान के बारे में चर्चाएं की थी। उनके द्वारा प्रस्तुत आस्था और तर्क के समन्वय के समक्ष सभी निशब्द होकर उनके चरणों में आश्रय लेते थे। उड़ीसा के प्रख्यात वेदांती सार्वभौम से लेकर वैष्णव पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए पठान समुदाय के भक्तों तक श्री चैतन्य का ये प्रभाव देखा जा सकता है। देवियों और सज्जनों, श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि शैषुणाना अमानिना
मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने को तिनके से भी छोटा समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का स्मरण करता रहे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन्य लोगों को सम्मान देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। मनुष्य में यह भाव होना चाहिए कि ईश्वर सदैव कीर्तनीय है, अर्थात व्यक्ति को सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। देवियों और सज्जनों, यह भावना भक्ति मार्ग के सभी अनुयायियों में मिलती है। ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम भाव तथा समाज को समानता के धागे से जोड़ने का उनका अभियान उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास में अद्वितीय प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर दर्शन की ओर केंद्रित कर देना, जिससे जिस प्रकार वे पहले वस्तुओं या परिस्थितियों में प्रसन्नता का अनुभव करते थे, उसी प्रकार की प्रसन्नता भगवान की भक्ति में अनुभव कर सके। उनका ईश्वर में इस प्रकार विलीन हो जाना कि कभी अपने को उनसे अलग समझ ना सके, यह है भक्ति भाव। और इस स्थिति को चैतन्य महाप्रभु महाभाव कहा करते थे। ऐसी ही अवस्था का वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिस प्रकार उद्धव के शुष्क ज्ञान से भरे वक्तव्य राधा रानी की भक्ति रस से सिंचित असंबद्ध बातों के समक्ष प्रभावहीन हो जाते थे, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर भक्ति की धारा के प्रबल वेग में दार्शनिक ज्ञान विलुप्त हो जाता है। राजपूताना की राजकुमारी मीराबाई की अनन्य भक्ति उनके सरल शब्दों में व्यक्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा की भक्ति ने सभी ईश्वर भक्तों के हृदय को छू लिया। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ साथ भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्रति एक व्यक्तिगत और आत्मिक संबंध बनाने की परंपरा भी थी। संत कबीर ने भी कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर की इस पंक्ति में ईश्वर की भक्त से निकटता का विश्वास और भाव बड़ी सुंदरता से स्पष्ट होता है। भक्त का हृदय ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख का अनुभव नहीं कराता। कृष्ण भक्त सूरदास ने भी इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। अर्थात भक्त का मन अन्यत्र कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करता है, जैसे जहाज का पक्षी बार बार उड़कर जहाज पर ही वापस आता है, वैसी ही भक्त का हृदय बार बार ईश्वर के चरणों में ही लौटता है। भक्ति की पराकाष्ठा तो ऐसी होती है कि ईश्वर स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। राम भक्त हम सब लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पर संतों की भारी भीड़ ये आश्चर्यजनक और हृदय को छू लेने वाला हृदय दृश्य देख रही है, जिसमें तुलसीदास चंदन का लेप तैयार कर रहे हैं और स्वयं भगवान श्री राम अपने मस्तक पर चंदन का लेप लगा रहे हैं। भक्ति मार्ग के संतों की यह विशेषता उस समय के प्रचलित धर्म, जाति और लिंग भेद तथा धार्मिक कर्म कांडों से परे थी। अतः इससे हर वर्ग के लोगों ने प्रेरणा तो ली ही, इस मार्ग में शरणागत भी हुए। इसी प्रकार गुरु नानक ने भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक समता मूलक समाज के निर्माण हेतु प्रयास किया। देवियों और सज्जनों, पिछले सप्ताह मुझे हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक तो थे ही, वह भक्ति मार्ग के महान प्रेरक भी थे। लोगों में भक्ति का संदेश प्रवाहित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं ही श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, बद्रीनाथ, नैमिषारण, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर
और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। उनकी जगन्नाथपुरी की यात्रा का भी विशेष उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के अनेक क्षेत्रों में महान विभूतियों ने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया। असम में शंकर देव से लेकर गुजरात में नरसिंह मेहता तक तथा उत्तर में गुरु नानक से लेकर दक्षिण में मेलपत्तूर नारायण भट्ट तिरी तक कोई भी क्षेत्र भक्ति की इस धारा से अछूता नहीं रहा। गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु से लेकर महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर तक महान संतों ने पूरे देश को भक्ति भावना से एकाकार किया। देवियों और सज्जनों, भक्ति की यह धारा देश से बाहर विदेशों में भी प्रवाहित होती रही है। ये कहा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के जिस महान वटवृक्ष को विकसित किया, उसकी विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। इसी परंपरा में इस्कॉन के संस्थापक स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद भी आते हैं, जिन्होंने पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संदेश को पहुंचाया। ईश्वर भक्ति की ये सभी धाराएं वस्तुतः एक ही सत्य से जुड़ी हुई हैं और उनका बृहद स्वरूप पूरे विश्व में देखने को मिलता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण की भक्ति मार्ग की विशेषता मात्र आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु मानवता की सेवा को साकार करने वाली हर व्यक्ति की जीवन शैली में भी देखने को मिलती है। इसी मानव सेवा के समर्पण वृत्ति का एक रूप हमें डॉक्टर्स, नर्सेस तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा में भी दिखाई देता है। सेवा भाव को हमारी संस्कृति में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कोविड महामारी के दौरान इस सेवा भाव का प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस से हुए लोग भी संक्रमित हुए, लेकिन उनकी उतनी विषम परिस्थितियों में भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और त्याग व साहस के साथ लोगों के उपचार में जुटे रहे। हमारे अनेक कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान भी गंवाई, परंतु उनके सहकर्मियों का समर्पण अटल बना रहा। पूरा देश ऐसे योद्धाओं का सदा ऋणी रहेगा। मानवता की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य मानने वाले हमारे कोरोना योद्धाओं ने जापान में प्रचलित इकिगाई की अवधारणा को सार्थक बनाया। हम सबको अपने जीवन की इकिगाई को पहचान कर उसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो अथवा व्यावसायिक। देवियों और सज्जनों, चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त भक्ति आंदोलन की अन्य महान विभूतियों ने हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता को शक्ति प्रदान की। भक्ति समुदाय के संत अपनी शिक्षाओं में एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे, अपितु प्रायः एक दूसरे की कृतियों से प्रेरित होते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर और संत रविदास सहित अनेक विभिन्न संप्रदायों के संतों की वाणी का समावेश किया गया है। जहाँ अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत की स्थापना की जा रही थी, वहीं सहजता और सहिष्णुता की धारा भी प्रवाहित हो रही थी। 1893 में जब हमारा देश उपनिवेशवाद के बंधनों में जकड़ा हुआ था, उस समय स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव का उदाहरण संपूर्ण विश्व के सामने शिकागो धर्म सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में विश्व समुदाय के समक्ष भारत के आध्यात्मिक संदेश को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगे हैं, लेकिन अंत में सब ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। आध्यात्मिक एकता का भारत का यह सिद्धांत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। देवियों और सज्जनों, मैं भारत के पूर्वी क्षेत्र की उन महान आध्यात्मिक विभूतियों का उल्लेख भी करना चाहूँगा जिन्होंने विश्व पटल पर
हमारे देश को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मध्यकाल में जब भक्ति आंदोलन अपनी चरम पर था, तब भारत के पूर्वी क्षेत्र को गौड़ नाम से जाना जाता था। संभवतः इसीलिए श्री सरस्वती प्रभुपाद जी ने विश्व वैष्णव राजसभा को गौड़ीय मठ का नाम दिया था। उनके प्रयासों से देश के विभिन्न शहरों में गौड़ीय मठ की स्थापना हो सकी और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार वे मानव जाति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रासंगिक शिक्षाओं का प्रसार करते रहे। मैं आशा करता हूं कि गौड़ीय मिशन मानव कल्याण के अपने इस उद्देश्य को सर्वोपरि रखते हुए चैतन्य महाप्रभु की वाणी को विश्व भर में प्रसारित करने के अपने संकल्प में सफल होगा। एक बार फिर सरस्वती प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती से जुड़े समारोहों की सफलता के लिए मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रभुपाद की जय। आज जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के प्रकटोत्सव पर इसका शुभारंभ हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा हुआ और ये जैसा आपको पता है ये 3 वर्ष तक चलेगा। हमारे श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे अपने गौड़िया मठ के हैं, क्योंकि जब ये बिहार के गवर्नर थे तो हमारे गौड़िया मठ है पटना में, वहाँ पर भी आए और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत अच्छा बोला। इन्होंने अपना पुश्तैनी घर हमारी आरएसएस को समर्पित किया हुआ है। गरीब उपेक्षित लोगों के लिए इन्होंने फ्री लीगल एंड एड सोसाइटी बनाई हुई है, जिसमें सभी उपेक्षित लोगों को कानूनी सहायता मिलती है। अभी मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप लोग सब खड़े हो जाएं और हमारे राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में जगन्नाथ जी का जयकारा लगभग जगन्नाथ भगवान की, और साथ ही हमारे जो पुलिस बैंड उसके द्वारा राष्ट्रीय गान। श्रील प्रभुपाद की जय। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए सभी संतों से मैं प्रार्थना करूंगा। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनकी धर्मपत्नी